اللہ اکبر، اللہ اکبر، مجھے ہے حکم اذاں، لا الہ الا اللہ۔ اذان کی گونج نے پوری دنیا میں طوفان برپا کیا ہے اور شیطانی ابلیس کو بھگایا ہے۔ لوگوں نے اذانیں چھتوں پہ ایسے دی ہیں کہ اذان کی گونج پوری دنیا میں سنائی دی ہے، اور اس سے جو فطرے کو نقصان پہنچا ہے، جو ابلیس، جو شیطان جو اس چیزوں کے اوپر پروپیگنڈا کر رہے تھے، وہ نیست و نابود ہوئے ہیں۔ اذان دی جاتی ہے شیطان کو بھگانے کے لیے، فلاح کے لیے اور نیکی کی طرف لانے کے لیے۔ تو اس دوران جو ایک خاص طبقہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک پروپیگنڈا کر رہا تھا اور اس میں پوری کی پوری ایک مشینری استعمال ہو رہی تھی، اس کے تمام ارادے نیست و نابود ہوئے، اور لا الہ الا اللہ کی صداؤں نے اس سارے پروپیگنڈے کو واڑ کے رکھ دیا، اور اللہ اکبر کی صدائیں اور اللہ کی پکار نے پوری دنیا میں جو ہے وہ شرمندہ تعبیر کیا۔ اس ساری مکمل ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ اس پروپیگنڈے کے پیچھے کون تھا، علی محمد خان صاحب نے ایسا کیوں کیا، شیر افضل مروت نے مذاق کیوں اڑایا، اس کے ساتھ حلیم عادل شیخ نے کیوں اڑایا۔ مسلم لیگ نون کا میڈیا سیل لندن میں بیٹھ کر اس اذان کو متاثر کرنے کے لیے، اس پروپیگنڈے کو، اس اذان کے اوپر جو پروپیگنڈا کر رہا تھا وہ بے نقاب ہوا ہے۔ اس کے پیچھے بیرونی سازشیں کون تھیں، اس ساری ڈیٹیل کے اوپر بات کرتے ہیں اور آپ کو اصل حقائق بھی بتاتے ہیں۔ دوسری بڑی خبر کا تعلق جو ہے وہ شہباز شریف سے ہے، جو کہ آج کل لندن میں ہے۔ لوگوں نے احتجاج کیا ہے، وہاں پہ لیگی رہنماؤں کو انڈے، گندے انڈے، ٹماٹر، یہ سب کچھ چل گیا ہے، اور وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے ان کی مرمت بہترین چھتر پریڈ کے ساتھ کی ہے، اور وہاں پہ شہباز شریف کو پو کر کے جو ہے وہ احتجاج کیا ہے، اور لندن پلین کا پہلا بڑا کارنامہ عوام نے اڑا کے رکھ دیا۔ اس کی تفصیل آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی خبر کا بھی تعلق ٹرمپ سے ہے۔ ٹرمپ نے دھمکی لگائی ہے کہ اگر مجھے بیگرام ایئر بیس نہیں دیں گے تو نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ اس سے پہلے خواجہ آصف نے ایک بیان دیا ہے جس کے اوپر زیادہ تنقید کی جا رہی ہے۔ بیان یہ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان دشمن نمبر 1 ہے۔ اس سٹیٹمنٹ کے بعد حالات جو ہے وہ جغرافیکلی اور ایک نئی بحث کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور اگر امریکہ کو اڈے دیے نہیں بھی جانے تھے تو اس بیان کے بعد آپ سمجھیں کہ امریکہ کو وہ اڈے ملیں گے، جس کے ایک نئی جنگ چھڑنے کا بھی خدشہ ظاہر ہو سکتا ہے۔ تو یہ ملامت، یہ ندامت، یہ بے شرمی، یہ گھٹیا پن، یہ بے عقلی اور یہ بے وقوفانہ جو سٹیٹمنٹس دی ہے حکومت نے، کیا اس کے پیچھے راز کیا ہے، تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلی خبر، مجھے ہے حکم اذاں، لا الہ الا اللہ۔ جیسے ہی لوگوں کی چھتوں کے اوپر لاہور، کراچی، گجرانوالہ، اسلام آباد، راولپنڈی، پشاور، کوئٹہ، فیصل آباد، گجرانوالہ، سیالکوٹ، شیخوپورہ، جھنگ، ملتان، بھاولپور، لودھرا، ان تمام جگہوں کے جو نام لیے ہیں، ان کی چھتوں کے اوپر کونے کونے سے، پاکستان بھر سے، دنیا بھر سے، لندن، برطانیہ، یو ایس، یو اے ای، سعودیہ، ایران، عراق، اس کے ساتھ آسٹریلیا، جہاں جہاں بھی مسلمان تھے انہوں نے اذانیں دی اور لوگوں کی توجہ کا مرکز رہے۔ رات 9 بجے سے لے کر صبح کی اذانوں تک لوگوں نے چھتوں پہ چڑھ کے اللہ اکبر کی صدائیں لگائیں، اور اس اللہ اکبر کی صداؤں نے لوگوں کی جلن میں اضافہ کیا۔ مارکیٹ سے برنول ختم ہو گئی جو جلن کے اوپر لگا کے کو ٹھنڈا کر سکتی، خاص کر ایک ہی میڈیا سیل جو کہ پکڑا گیا ہے لندن سے، وہ پروپیگنڈا کر رہا تھا۔ اس اذان کے اوپر ایک گھٹیا ترین میڈیا سیل، حکومتی میڈیا سیل کہنا درست ہوگا، کیونکہ اس وقت حکومت کیونکہ مسلم لیگ نون کی ہے، اور یہ گھٹیا ترین پروپیگنڈا جو کیا جا رہا تھا اس کا تعلق بھی مسلم لیگ نون کے میڈیا سیل سے جا نکلا۔ ایک خاص قسم کے لوگ جو اس وقت ان کا میڈیا سیل چلا رہے تھے، یہ گنتی میں کوئی 15-20 لوگ تھے جنہوں نے اس کو جو ہے متاثر کرنے کی کوشش کی۔
जिन्होंने अजान देने की कोशिश को मुतासर करने की कोशिश की और वो मुतासर करने में नाकाम रहे, निस्त नबूद हुए। अल्लाह की सदा बुलंद हुई, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है की सदा बुलंद हुई। लोगों ने इस प्रोपेगेंडे को खत्म करके रख दिया और इस हुकूमत की एक और बड़ी नाकामी मुझे देखने को मिली, वो थी गुजरात में। गुजरात में जनाब जिले सदर हैं चौधरी रिजवान, ये छत के ऊपर अजान दी तो लोगों को पता चला कि चौधरी रिजवान अजान दे रहा है, तो किसी ने मुखबरी की और हुकूमत ने वहां पे अजान देते हुए चौधरी रिजवान को, जो जिले सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको छत से ही गिरफ्तार किया। भारी भरकम पुलिस के साथ फौरी तौर पे आए कि लोग अजान क्यों देते हैं। अब इसके ऊपर भी जो लोग इसके ऊपर प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि ये मिशन नूर है, फलां है, भाई जो भी है, थी तो अल्लाह की अजान, थी तो अल्लाह की कलाम। इसमें अगर किसी ने कोई नाम के साथ चला दिया है या कुछ ऐसा कर दिया है, मैं इसके ऊपर तो तबसरा नहीं करता, लेकिन जो भी थी अल्लाह की आवाज थी, अल्लाह की पुकार थी, अल्लाह का नाम बड़ा होने की पुकार थी। लोगों को बताया जा रहा था कि अल्लाह की अजान हो रही है। लोगों ने खामोशी से वक्त का इंतजार किया था और ये अजानें सुनी। हुकूमत पंजाब मरियम नवाज उर्फ टिकटॉकर्स की हुकूमत ने एक मरतबा फिर भांडी हरकत करते हुए गुजरात में चौधरी रिजवान को गिरफ्तार किया, और उस टाइम गिरफ्तार किया जब वो अजान दे रहे थे। तो ये हिस्ट्री लोगों लिख लें, ये ना इनका नाम, ना तो इनका कोई दीन से तल्लुक है, ना कोई ये इस्लाम से इनका कोई तल्लुक बनता है कि जब आप अल्लाह की अजान भी दें तो क्या आप उनको गिरफ्तार करेंगे। वैसे तो लोगों को नमाजों के दौरान भी गिरफ्तार किया जाता है, लोगों को तहज्जुद की नमाजों में भी गिरफ्तार किया गया है। यह हिस्ट्री 3 सालों से बनती देखी आई दे रही है और आग भरे जा रहे हैं। थानों में रिटें और दरखास्तें दी जा रही हैं और थानों में इतने मुकदमात हो चुके हैं इन तमाम चीजों से 3 सालों से कि पुलिस तंग है, इदारे भी तंग है, आ गए हैं। जो निचले तबके की पुलिस है या इदारे के लोग हैं वो तंग आ चुके हैं कि ये हमसे क्या क्या हरकतें करवाई जा रही हैं। आखिर भी हमने मरना है, लोग ये हमें कहते हुए दिखाई देते हैं। हमारे ऊपर बहुत प्रेशर है, हमारी फैमिलियों को बहुत थ्रेट्स हैं, जिसकी वजह से हमें ये काम करने पे मजबूर किया जा रहा है। इस सारे प्रोपेगेंडे के में कुछ लोगों ने कुछ स्टेटमेंट्स दी जो कि मुतराजा रही। सबसे बड़ी स्टेटमेंट अली मोहम्मद खान ने दी, जिसके ऊपर उनको ट्रोल किया गया। वो मिशन नूर के हवाले से कुछ ऐसी चीजें उन्होंने सोशल मीडिया पे ऊपर की जो कि लोगों ने उसको प्रोपेगेंडे की नजर से देखा और कहा कि पीटीआई के अंदर ये ऐसी कुव्वतें मौजूद हैं जो अल्लाह के नाम की, जो अजान के नाम के ऊपर जो है वो इतने खौफजदा है कि उन्होंने जो अंदर छुपे लेले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लेले, इनको लेला कहना बहुत कम है, इनको घटिया, बदतरीन, बदनुमा, भद्दे चेहरे और मकरू चेहरे कहना बहुत ही दुरुस्त है। आप लोग इन्हें पुकारा करें, क्योंकि जो लोग अल्लाह की अजान से ऊपर प्रोपेगेंडा कर रहे थे या ऐसे करने की कोशिश कर रहे थे, इनका भी ताल्लुक उसी सतह पे देखा जाता है। दूसरा नाम है शेर अफजल मरवत। शेर अफजल मरवत ने भी एक जगह पे, मैं उनकी स्टेटमेंट सुन रहा था, उन्होंने फरमाया कि 5 टाइम की अजानें तो सुनी है और 5 टाइम से ज्यादा जो अजान होती है वो तो मुर्गा देता है। भाई आप मस्करा हैं, आप बेशक रहे, आप मस्करा रहे हैं तो आपकी फिर बातें भी मुस्करा टाइप हैं। अजान सिर्फ 5 वक्त की जरूरत नहीं होती। अजान जब भी कहीं आपकी लगता है कि मुआशरे में जुल्म है, जब कोई आफत आती है, जब कोई जो कुदरती तौर पे कोई किसी खिते के ऊपर जुल्म होता है, जलजला आता है, सिलाब आते हैं, बारिश आती है, ओले आती हैं, तूफान आते हैं, जुल्म होता है किसी भी जगह पे, तो वहां पे लोग अजानें देते हैं। तो शेर मरवा साहब, आप अपनी स्टेटमेंट से इत्तेफाक करते हुए ये वापस लेंगे, ये मुर्गे की अजानें होती हैं, ये गलत बात है। तीसरा नंबर के जनाब एक हलीम आदल शेख साहब थे, जिनका बहुत प्रोपेगेंडा किया और लोगों ने उनका प्रोपेगेंडा वार के रखा और उन्होंने आखिरकार एक स्टेटमेंट दी कि हमें हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह, मिशन नूर के बारे में उन्होंने कुछ और बात की। तो खैर इस सारी कैटेगरी में वो भी है। और चौथा नंबर जनाब हलीम आदल शेख, सॉरी आरिफ अलवी। आरिफ अलवी की भी स्टेटमेंट मुतराजा बनी, सोशल मीडिया पे लोगों ने उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया और लोगों ने जो है इनका भी सॉफ्टवेयर सोशल मीडिया के जरिए अपडेट किया और उनको आखिरी लम्हे तक जो है एक नई स्टेटमेंट देनी पड़ी। हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह के हवाले से उन्हें स्टेटमेंट देनी पड़ी। इस सारी कारकर्दगी के पीछे मुस्लिम लीग नून का बांदरों का सेल
अब उनको बांदर कहना, आप कह रहे होंगे कि यार ये क्यों गलत कह रहे हो, आप किसी क्यों बांदर बना रहे हो? बांदरों का सेल है। मैं, आप बल्कि मेरे से ज्यादा बेहतर जानते होंगे, वो लंदन में एक क्लासिक मिठा जी हैं, पता नहीं इतना कोई बगैरत और घटिया इंसान है। यहां पे वो मरियम के साथ आके फोटो सेशन करवाता है, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के दरमियान में खड़ा होता है, खड़े होकर यहाँ पे सेल्फियां राइवेंड में जाके बनवाता रहा है। मोहसिन नकवी साहब के साथ बैठ के कुर्सी पे ऊपर टांग पे टांग रख के ये शख्स बैठा रहा है। उसने कहा है अगर आप बांग देंगे तो साथ डांग भी देंगे। फिटे मुंह, ऐसे गुहीरे पे, ऐसे चुगीरे पे, ऐसे बांदरनुमा बदनुमा भद्दी गंदी शक्ल के कि जो अजान को भी बिगाड़ पैदा कर रहे थे। और ये फिर वो कहते हैं कि यहूदियों के एजेंट कौन है? तो फिर आपकी सतहों में ऐसे लोग जो अजान का नाम बिगाड़ कर डांग और बांग कह रहे थे कि जहां पे बांग होगी वहां पे डांग होगी, मतलब आप बांग देंगे। बांग एक पंजाबी का लफ्ज है, ये लोकल लोग जो कहते हैं ना बांग हो रही है, लोग इसको अजान को बांग भी बोलते हैं, तो उस लहजे को उसने कहा है कि जहां बांग होगी वहां पे फिर डांग होगी। ये वो घटिया बदनुमा किरदार है, मरियम का खास चीता है, मरियम का खास रखेल है, मरियम का खास भगौड़ा टट्टू टाइप एक गंदा बदनुमा गलीज कुत्ता इंसान है। इसने जनाब इस तरीके से अजान और बांग के दरमियान जो है वो फर्क डालने की कोशिश की और लोगों को थ्रेट्स किए कि अगर आपने अजान दी तो आपको डांग फेरी जाएगी। और फिर उसकी नानी पड़नानी वजीर आला ने गुजरात में एक अजान देते हुए जिले सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छत से अजान देते हुए गिरफ्तार किया और बांग के साथ उन्होंने डांग दे दी। तो यह भी याद रखा जाएगा, याद रखना। आगे बढ़ते हैं जनाब। शहबाज शरीफ लंदन में मौजूद है। लंदन में उनका बड़ा जनाब इस्तकबाल हुआ है। इस्तकबाल, अब पटवारी हजरात जो हैं वो जरा दूर हो जाएं, अपनी बहनों को माओं को लेकर जरा दूर बैठ जाएं। ये वीडियो उनके लिए नहीं है, मैं बता रहा हूं। वहां पे जनाब जो वो इस्तकबाल किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, लोगों ने शहबाज शरीफ को देखते ही ऊ पू चू के ऐसे ऐसे किया, शर्मिंदगी से नाक नीचे करके नजरें नीचे करके गाड़ी में बैठे थे। ये वो हैं शहबाज शरीफ जिनको कह रहे थे कि जी जहाजों के प्रोटोकॉल मिले हैं, बड़ी ढोलकी बजाई रही थी, बहुत कुछ किया जा रहा था कि पता नहीं इन्होंने दुनिया फतह कर लिया। बाहसियत वजीर आजम के करैक्टर के ऊपर कई जो है वो करप्शन के दाग हैं, कई इनकाउंटर के दाग हैं, कई गरीबों को मारने के दाग हैं। जो सानिया मॉडल टाउन का दाग भी वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ पे था। तो ये सारे किरदार उसके ऊपर हैं और वो हीरो बन गया जी। करप्शन की इंतहा कर दी है इस हुकूमत ने और इनकी भतीजी ने 10 खरब हड़प करके भी कहती है मैंने काम कर दिया है, बाहर दुनिया बदल गई है, करप्शन करके भी दुनिया बदल गई है। फिटे मुंह इनके चेहरों के ऊपर ऐसी बात करते हुए लोगों को एजुकेट कर रहे होते हैं और आगे बैठे हुए दमड़ी ढोलकी बजाने वाले मिरासी ताड़ियां बजा रहे होते हैं। ड्रामा सही चल रहा, स्क्रीन सज जाती है, लोग आ जाते हैं, कुर्सियां लग जाती हैं, बैठ जाते हैं, बिरयानी लग जाती है, सामने कैरेक्टर आता है टिकटॉकर का, वो इनको एजुकेट करता है, पीछे से ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं। ये भी बगैरत है, इनके लीडर भी बगैरत है। आगे बढ़ते हैं जनाब। वहां पे एहतजाज किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने और एहतजाज के बाद जनाब वहां पे हला गुला हुआ, गिरफ्तारियां भी हुई हैं और लोगों ने वहां पे अंडे टमाटर और जूतों के साथ वहां पे लीगी एहलकारों को पीटा है, मार कुटाई हुई है, एक दूसरे को मारा है, घसीटा है और पाकिस्तानियों ने का नाम बड़ा रोशन किया है, एक दूसरे को मारकर अंडे फेंक कर गलम गलोच करके वहां पे दुनिया को बताया कि यहाँ पे एक महजब कौम पाकिस्तानी रहते हैं। ये लंदन के वाकयात आपको बता रहा हूँ, बरतानिया के वाकयात बता रहा हूँ। और शहबाज शरीफ ने आज खिताब करना था, वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने इतनी ज्यादा नारेबाजी की है और इस तरीके से वहां पे जो हुल्लड़बाजी की है, मैं उसकी भी खिलाफ वर्जी करने के ऊपर इस तरीके से कोई भी पाकिस्तानी जहां पे भी हो, चाहे उसके ऊपर कितने बड़े ब्लंडर हों, चाहे उसके ऊपर कितने बड़े कत्ल के मुकदमे हों, चाहे उसने कितने बड़े कत्ल किए हों, वो पाकिस्तान का आइन है, कानून है, वो उसको अपने कटहरे में लाएगा एक दिन। चाहे गीदड़ की 100 साल की जिंदगी शेर के एक दिन की जिंदगी से बेहतर होती है। तो आप बेफिक्र रहें, इन तमाम चीजों का हिसाब लिया जाएगा। वो लोग जिन्होंने आइन शिकनी की है, कानून शिकनी किया है, भत्ताखोरी ली है, करप्शन की है, इनका कटहरा, इनकी रस्सी एक दिन पकड़ी जाएगी
اور یہ माफिया से मुल्क आजाद होगा, इस चीज के ऊपर आप बेफिक्र रहें और इस तरीके से हरकत ना करें कि दुनिया आपको जो है वो तमस्कर उड़ाए। और इस तरीके से ये जो वाक़या हुआ है, इस सारे वाक़े की बतौर सहाफ़ी में मज़म्मत करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। ट्रंप ने धमकी लगाई है अफगानिस्तान को। अच्छा, अफगानिस्तान की स्टेटमेंट पहले एक ख्वाजा, आप समझ तो गए, आगे मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। ख्वाजा, ख्वाजा हमारे बहुत ही अच्छी कम्युनिटी है ये। इन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया और स्टेटमेंट में कहा है जनाब कि अफगानिस्तान पाकिस्तान का नंबर 1 दुश्मन है। और उसके बाद अमेरिका ने धमकी लगाई है कि बिग्राम एयरबेस जनाब हमारे हवाले कर दें। अगर आप बिग्राम एयरबेस वाले नहीं करेंगे तो संकीन नतैज आपको भुगतना पड़ेंगे। जहां पे अफगानिस्तान ये अगर एयरबेस नहीं भी दे रहा था, अब ख्वाजा ख्वाजा की बयान के बाद, ख्वाजा की कहा नहीं कह रहा, की बयान के बाद अब अफगानिस्तान में नफरत मजीद बढ़ गया है इस हुकूमत के खिलाफ, पाकिस्तानियों के खिलाफ। और अब वो इसी स्टाल में आके कल को ये मुझे ना लगे, अल्लाह ना करे कि ये बिग्राम एयरबेस अमेरिका के हवाले हो और फिर इस खित्ते में एक नया खतरा जन्म ले। उधर आप कर रहे हैं सिक्योरिटीज के ऊपर एग्रीमेंट्स। जैसी सिक्योरिटी के एग्रीमेंट्स होते हैं नाजरीन, अमेरिका को, इसराइल को, नेटो को, इन तमाम ममालिक को आग लग जाती है। और ये इस टाइम पाकिस्तान के खिलाफ हर महाज पे जो है वो चीज़ें ढूंढ रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से इनको पकड़ना है। अब इसके बाद देखना कि अमेरिका इस खित्ते में आकर क्या तबाही मचाता है। और ये ख्वाजा की स्टेटमेंट याद रखना कि इन्होंने जो स्टेटमेंट देकर बिरादर मुस्लिम ममालिक, चाहे हमारे उनके साथ बहुत सी चीज़ों के ऊपर मुझे भी इख्तलाफ है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैं दोबारा किसी दिन डिस्कस करूंगा। सिक्योरिटी की चीज़ें हैं, दहशतगर्दी की वो चीज़ें हैं जिसमें अफगानिस्तान जो है वो इंडिया का साथ देते हुए हमें बहुत नुकसान पहुंचाया। माजी में हमने बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया है। इसी वजह से पाकिस्तान की जो मगरब का बेल्ट है, बॉर्डर है, वो गैर महफूज रहा है। लेकिन जब आप इंटरनेशनल प्लेयर बन जाते हैं, जब आप एक इंटरनेशनल वार जीतते हैं और आपसे 5 गुना मुल्क को शिकस्त फाश करते हैं और फिर आप अपने हमसाये को ललकारते हैं कि आप हमारे दुश्मन हैं, एक मशरक में बना लिया, आप एक मगरब में बना लिया, तो आप चाहते क्या है? मुझे तो इसके पीछे पता नहीं राज किया है। ये लस्सी पी गया। वैसे तो ये वजीरे दिफा साहब को बस सियालकोट की नहर में छलांगे लगाए, कच्छा पहनाए, ये मस्करे उधर ही सजते हैं। नहरों के ऊपर कच्छे बेचने वाले या कच्छे पहन के छलांगे लगाने वाले, ये उधर ही मस्करे सजते हैं। इनसे ना हुकूमत चली है आज तक, ना इनसे कोई तवक्को रखे पाकिस्तानी अपनी इज्जत की। ये इतने गिरी हुई हरकतें करते हैं कि आप अपने बैल मुझे मार की कहानी जो सुनी थी, ये ऐसी स्टेटमेंट मुझे लगती है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को हिफ्ज़ व अमान में रखे, अफवाज पाकिस्तान को मजबूत करे और जो इस तरीके से कुछ पाकिस्तान को कमजोर करने की कुछ साजिश कर रहा है तो अल्लाह उसे गर्क करे, मेरी दुआ है। और पाकिस्तान जिंदाबाद। नई वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी। आखिर में अल्लाह पाक आप सबको इतनी ज्यादा खुशियां दे तो आगे खुशियां तकसीम कर सके। थैंक यू सो मच।